student, let us today learn a question of physics of motion with acceleration, retardation, and given time and distance. So there are various things to be find out. The question is like this. You please see very carefully and try to understand all the concepts and solving process. See here, a train starts from rest. If any moving train starting with rest, you should consider the initial velocity of the train is 0 and accelerates. What is acceleration and how it is accelerating? Uniformly. At the rate, the value is given 2 meter per second square. Always remember this unit is of acceleration. 2 meter per second square. For how many times? 10 seconds. This first part of the question is like this. It then maintains a constant speed. See another thing. Here it was accelerating for 10 seconds with this much of uniform acceleration. The second part maintains a constant speed for 200 seconds. All things are very important. Constant speed running for 200 seconds. Now, then the brakes are applied. Now this is a braking force. जो ट्रेन चल रही थी उसको रोकने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक लगाया जाता है और ये सीखने का चीज़ है यहाँ. ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग. If acceleration is positive, it is increasing acceleration. If it is retarding, these speeds are getting reduced. Up to how much? See here. And in what time? रेस्ट में आ गया. तो जब रेस्ट में आएगा तो इस फाइनल वेलोसिटी को, रेस्ट को 0 लेते हैं और इनिशियल यदि रेस्ट हो तो u को 0 लेते हैं. ये u इनिशियल के लिए लिया जाता है और v फाइनल वेलोसिटी के लिए. मगर कितने देर के बाद? ऑफ 50 सेकेंड्स. ये क्वेश्चन कह रहा था. अब आपको निकालना है 4 डिफरेंट चीज़ निकालना है. पहला निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी. ट्रेन कितना वेलोसिटी रीच की है. दूसरा क्वेश्चन है रिटार्डेशन इन द लास्ट, बंद होने के 50 सेकेंड, इन द लास्ट 50 सेकेंड्स में क्या रिटार्डेशन रहा है, किस तरह से वो रिड्यूस हो रहा था. एंड थर्ड, यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन द जर्नी. जो शुरू की थी 10 सेकेंड तक चली कुछ एक्सेलरेशन से, फिर कांस्टेंट स्पीड से चली है, फिर ब्रेक लगाने के बाद बंद भी हो गई है, कुछ टाइम लगा है. तो ये सारे चीज़ टोटल डिस्टेंस भी निकालना है और क्या रहा पूरे जर्नी में एवरेज ट्रेन का स्पीड. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट ऑल द थिंग्स. सो फॉर द सॉल्यूशन you should take if you are taking the first part of this question, maximum velocity. So you must know a simple formula, v is equal to u plus at. Understand? This is final velocity, is initial velocity with acceleration as it is given 2 meter per second for 10 seconds. So the suitable equation of this motion is this. Now you can put the values. V you have to find what is the maximum velocity. U coming with the rest, take 0. Acceleration 2 meter per second square, and for how many times? 10 seconds. So this becomes 0 is 0, nothing to be added. 10 into 2, the first answer is 20 meter per second, and this is here. Understand?
The first part of this question is solved very easily. Then, as it is running with constant speed for 200 seconds, so the speed is this, and running with this speed for 200 seconds, so let us find a distance first travel. S is equal to ut. This is very important. For the distance travel, here see distance travel. So in the second part, if the train is running with a constant speed, whatever it is, as we have got 20 meter and the time is 200, so S is the distance, there is no acceleration, constant speed. So you can solve this with 20 into 200. How much this is? 4,000 meter. Keep it as this is constant स्पीड से जो चल रही थी वो 200 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये हो गया। अभी देखेंगे हम लोग फर्स्ट बना चुके, इस पार्ट का एक डिस्टेंस निकाल दिए हैं क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकालना है। सेकेंड जो है, सेकेंड अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे, तो रिटार्डेशन इन लास्ट 20 सेकेंड। तो हम लोग लास्ट 20 सेकेंड्स में स्पीड तो था हमारा अब 20 है ना, और रेस्ट में चला गया है, तो ये फार्मूला ही हम लोग लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। देखेंगे क्या होता है। एज इट कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकेंड्स, सो रेस्ट के लिए 0 दे दिए। किस स्पीड से चल के आ रही थी? 20 से चल के आ रही थी। प्लस एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन एक ही होता है, घटता है, फार्मूला में लगाइए। कितने सेकेंड में? 50 सेकेंड्स में। ये समझ में आया? अब हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ 0 है ना, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 50a माइनस, प्लस है ना, माइनस है, माइनस लगा के भी बनाते तो पर भी रिटार्डेशन आता। आप इसी को लगाओ, देखो नेगेटिव में यदि आएगा तो इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। आ ही रहा है, यहाँ क्या बच गया? 20। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ये माइनस हम उधर लिख सकते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू -20/50। ये देखो कट जाएगा और ये हम 0.4 क्या आया एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? 0.4। 5 चौके 20, नेगेटिव साइन आया है। साइन सिर्फ रिटार्डेशन के लिए हुआ, ए उसका सिंबल हुआ एक्सेलरेशन, और ये यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो देखो पहले में फर्स्ट में हम s इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट के लिए S1 लगाते हैं। सोचो S1 है तो ये क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये समझ में आया? ये डिस्टेंस का फार्मूला है जब एक्सेलरेशन रहता है, और फर्स्ट में एक्सेलरेशन था तो u तो ये रेस्ट से चालू हुआ था तो यहाँ 0 लिख देंगे, और टाइम कितना था? 10 सेकेंड में दूरी तय निकालना चाहिए। पहले यहाँ हाफ लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या था? 2 था, हाफ a 2 मीटर था, और t कितना था? 10। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10 × 10। ये समझ में आया? ये ut तो 0 हो गया, यूरो था, टाइम कुछ भी लगाएंगे, 0 ut ऐसा है, ये 0 हो गया। ये 2 काट देते हैं तो कितना बच जा रहा है? 10 × 10 100 मीटर। फर्स्ट में, फर्स्ट वाले के लिए डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। सेकेंड वाला जो कांस्टेंट था इसको हम सेकेंड बना देते हैं, क्योंकि सेकेंड में कांस्टेंट स्पीड था और हमारे पास वेलोसिटी u था, u जिससे वो आगे बढ़ रही थी 200 सेकेंड तक। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। S2 यहाँ लिख लेंगे हम लोग। S2 इज इक्वल टू, कहाँ से लिख रहे हैं? यहाँ से। कितना है?
4000 मीटर। ये समझ में आया। अब देखो इसके बाद जो फिर चला है और 50 सेकेंड तक चला है तो एक और डिस्टेंस निकलेगा S3 कि क्या हुआ था, तीसरे में ब्रेक लगने के बाद रेस्ट में आ गया था। तो इसमें जब जी निकालेंगे तो क्या होगा, S = UT + ½ AT²। ठीक है, कितना डिस्टेंस आ रहा है। U वेलोसिटी इसमें क्या था, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 20 था और टाइम कितना था, 50 सेकेंड तक चल रहा था +½ और रिटार्डेशन कितना था 0.4। यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है ना तो ये माइनस देंगे और t कितना है 50। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट 50 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था। ये समझ में आया। 20 × 50 कितना हो गया, ये हो गया 10 पर 2 जीरो। ये समझ में आया, 5 दूनी 10, 2 जीरो। और ये हम लोग यदि काटेंगे तो क्या बचेगा, 0.2 बचेगा। और एक जीरो यदि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 25,500। देखो माइनस करेंगे, ये 50, ये 0.2 है ना, एक जीरो इसको 2 बना देगा, ये जीरो क्या करेगा 2 बना देगा। तो यहाँ करेंगे हम लोग 2 × 50 × 5, 50 दूनी 100 और ये कितना बच गया 500, 100 × 5 500 आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना 5। अब ये तीनों S1, S2 और S3 को जोड़ेंगे तो देखो क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास S1 जो है 100 है, कैसे है, यहाँ देखो 100 है और ये 500 है और ये 4000 है। तो टोटल S इसका जो निकलेगा, टोटल S = वो कैसे निकलेगा, S1 + S2 + S3। S1 कितना है 100 + S2 कितना है 4000 + 500। ये टोटल कितना हो गया 4500, 600। तो ये टोटल डिस्टेंस 4600 मीटर इसका ये तीसरे का आंसर हो गया। समझ में आया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ तक तो बन गया, सारा आंसर सब आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो है एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए ये हम क्वेश्चन यहाँ से हटा करके आपको बता देता हूँ कि ये एवरेज स्पीड 4th वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड पूछा था। ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझ में आया। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास देखो ये तीसरे वाले से ये निकला हुआ है, यहाँ हम लिख देते हैं 4600। और टाइम क्या क्या था, पहले 10 सेकेंड था, फिर 200 सेकेंड था, फिर 50 सेकेंड था। दिख रहा है 10, 200, 50। तो ये कितना हो गया 4600 डिवाइडेड बाई 200, 50 और 10 60, 260। ये काट दो, कट गया। अब 460 को 26 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। 460 डिवाइडेड बाई 26, ये देखो 17.69 स्पीड है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। और यही आंसर है। अच्छी तरह से समझ लो, सीख लो और ख़ुद से ट्राई करोगे। बहुत ही आसान सब था। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, S = UT + ½ AT² है।
यदि कोई यूनिफॉर्म स्पीड होता है और उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है तो प्लीज़ रिमेंबर दिस फार्मूला। इसमें डिस्टेंस निकालना हो तो ये यू टी एस इज इक्वल टू यू टी ऐसा याद कर लो। इसका आधार बेस बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इस स्पीड को ही u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पीड या वेलोसिटी सिर्फ वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस है, तो जब भी यहाँ डिस्टेंस रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पर यू टी जो लिखा गया है ये बहुत आसान फार्मूला हो जाता है कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और इससे बहुत सा क्वेश्चन ईजिली तुरंत बन जाता है। एक्सेलरेशन नहीं है, जैसे एक्सेलरेशन होगा तो ये सब लगेगा। समझ में आया? Okay, thank you. Please try many more questions from your book.